I will show you what is molecular docking, and then we will do a short tutorial of molecular docking using Colab Notebook. That is a Google product, and for that you will not need any installation. You need that tutorial you can do even with your mobile phone as well, because everything we will be going to do is on the cloud. So there is a new concept called cloud computing. I am sure that you must be aware of that. So Google is providing us the computational resources free of charge with limited capability, but that will be sufficient for our tutorial. Okay. So for molecular docking, so if we start with molecular docking, so I will quickly skip all this because we cannot. So if you talk about computed drug discovery, so you can split it in like 4 different quadrants. So there is, if you have the structure of receptor in your hand and the structure of ligand in your hand, what you can do is you can do structure based computational drug design or ligand based drug design, where you can use molecular docking, pharmacophore modeling, virtual screening, similarity search, all those things. And if you have no ligand but a receptor, you can do molecular docking. That is called a structure based, where you are using the 3-dimensional structure of your receptor. ठीक है. ड्रग मोलिक्यूल में क्या होगा, ड्रग होगा आपका और रिसेप्टर से बाइंड करेगा. सो अगर आपके इसका 3D स्ट्रक्चर है, सो यू कैन यूज दिस 3D स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई न्यू मोलिक्यूल्स. ओके. अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, ऑल्दो आफ्टर द अल्फाफोल्ड 2, जब से अल्फाफोल्ड 2 आया है, गूगल डीप माइंड ने लॉन्च किया है, सो इट हैज़ प्रिडिक्टेड द 3D स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द प्रोटीन्स विच एग्जिस्ट. सारे प्रोटीन्स का 3D स्ट्रक्चर इसने प्रिडिक्ट कर दिया. सो इन दैट केस यू कैन यूज स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन फॉर एवरी प्रॉब्लम. अगर नहीं है तो आपके पास लाइगेंड है, लाइगेंड की स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे एंड यू यूज लाइक फॉर एग्जांपल फार्माकोफोर मॉडलिंग और सिमिलरिटी सर्च टू आइडेंटिफाई न्यू कंपाउंड. ओके. This was just simple, where you can use homology modeling and fishing. This molecular cycle we already talked about. I will not go into detail. This is pharmacophore modeling, homology modeling. Yeah, we will go through this, especially molecular docking, for just 20 minutes. So the molecular recognition is a central phenomena in biochemistry, and molecular recognition means we have 20,000 proteins in our cell. A tiny cell contains 20,000 proteins. उन 20,000 proteins में से हमारा drug molecule किससे जाकर के selectively bind करेगा, that is called as molecular recognition, right? So all these molecules like protein, they can recognize which ligand to bind. जैसा आपका इंसुलिन है, so that goes to insulin receptor. आपका जो इंसुलिन रिसेप्टर है सेल के ऊपर, उस सेल के ऊपर इंसुलिन जाके बाइंड करता है. इट रिलीजेस द कैल्शियम विच ओपन्स अप द चैनल, ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड इनसाइड. सो ऑल दिस फिजियोकेमिकल, बायोकेमिकल phenomena, these are controlled by molecular recognition, right? So how enzymes interact with their substrates, how receptors interact with their ligands, how antigens they bind to their antibodies. Okay, all this is done by molecular recognition. And then there is induced fit hypothesis and Loken-Key hypothesis, where there is a substrate and that binds to the enzyme active site, and then induced fit hypothesis says that once it binds and it then accommodate itself to fit it properly, like hand in glove. जैसे हम दस्ताना पहनते हैं, ग्लव पहनते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक बार ऐसे ग्लव पहना, फिर हम ऐसे उसको फिट करते हैं ना. सो दैट इज इंड्यूस फिट, लाइक सो वी आर फिटिंग इट प्रॉपरली. ऐसा नहीं कि हमने जस्ट पहन लिया तो हो गया, है ना. सो दैट इज इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस. So then there are approaches which can investigate molecular recognition. So there are computational method, because ये हमारा इंसुलिन है, ये जाके इंसुलिन रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है. दिस वी कैन नॉट सी विद आवर आइज, राइट? कैन वी सी दैट? नो, बिकॉज हमारी आइज में उतना रेजोल्यूशन नहीं है ना. सो वी हैव सम मेथड्स, लाइक आपके क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है, राइट? सो दोज कैन बी यूज्ड टू सी हाउ दोज मोलिक्यूल्स आर इंटरेक्टिंग. But that is not possible for each and every problem, because those are expensive and not available. Okay, so people, they try to identify alternate computational methods where they can simulate. आपने एक मॉडल बना लिया, कैसे ये जो है मॉलिक्यूल आपका इस मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है, यू कैन सिमुलेट.
and you can study how they are recognized. So there are molecular docking is one of those methods. Okay, free energy calculation is another, MMGBSA, free energy perturbation, thermodynamic integration, quantum mechanics, molecular mechanics methods, and a lot more methods. Every day people are coming up with new methods. Okay, so this binding energetics, whenever a small molecule is binding to the receptor or a target, so what happens is everything is explained by the thermodynamics. ठीक है, तो उसमें free energy होती है, gives by energy of binding, where delta G, which is the free energy, it is delta H, which is enthalpy, minus temperature, delta S, which is entropy. Okay, so the molecular recognition is depending on both enthalpy and entropy. So how much heat is released when these two molecules are interacting, how much entropy, how much change in entropy is there for this interaction. So all this is defining whether the interaction is efficient, potent or not, right? Selective. So the enthalpy comes from direct interaction between ligand, solvent, protein ions, ligand protein interaction, ligand solvent, solvent protein, conformational changes during binding, and the entropy comes from rotational and translation entropy, conformational entropy, solvent reorganization, and migration entropy. So these are some of the biomolecular interactions which are responsible, like intermolecular forces and intramolecular. Okay, intermolecular means between molecules, intra means within molecule, right? So intermolecular electrostatic interactions are there, dipolar, hydrogen bonding, hydrophobicity, van der Waals forces, and then we have intramolecular bond length, bond angle, diagonal angles. So all these, interactions are there. So now next question is, like, now we know how they interact, but what are the forces which are involved in this interaction? Now the question is, can we determine with how much efficiency they interact? कितनी स्ट्रेंथ के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक प्रोटीन है और एक लाइगेंड है, तो कितनी स्ट्रेंथ से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, that can we calculate. So there are methods, for example isothermal titration calorimetry, differential scanning calorimetry. So these are methods which can exactly tell us how much is the enthalpy of the reactions, how much is the entropy, right? And you know that if it is an exothermic reaction, that is a कौन सी रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. स्पॉन्टेनियस मीन्स अगर एक लाइगेंड एक रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है और वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है, सो दैट शुड बी एक्सोथर्मिक, मीन्स द डेल्टा जी शुड बी लेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स देन द इंडिविजुअल. ऐसे ही है ना, अगर आपके कॉम्प्लेक्स की एनर्जी डेल्टा जी फ्री बाइंडिंग ऑफ एनर्जी जो होगा, अगर वो नेगेटिव नहीं होगी तो वो आपका स्टेबल रहेगा. ठीक है. सो now molecular docking is nothing but it is a computational tool for exploration of possible binding modes of a substrate to a given receptor, enzyme or other binding site. So मेरे पास एक receptor है, ये मेरे पास ligand है. Now I want to see how it is binding. So there are different modes of binding to the active site, and exploring all those modes is called as molecular docking. Okay, it is that simple. So now this molecular docking has, so you have the ligand, you have target, you make a complex. So this is docking, where you take a molecule, you take a protein, and then you see how it is binding. So it's that simple. This is SARS-CoV-2, Mpro, main protease of SARS-CoV-2. This is the active site, and then this is the co-crystal structure or the doped structure which is bound in the active site. So you take the active site, you take a molecule, you put that molecule into the active site and see how it is binding. Okay. So now this molecular docking, so how it is done? So this molecular docking has two parts. अगर आप molecular docking process को split करेंगे, so one part is called as pose prediction or pose generation. आपका ये active site है, ये molecule है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही bind करेगा ये, ऐसा है क्या? Flexibility है ना, ये कहीं भी bind कर सकता है, इस तरह से, या ये वाली side ऐसे ऊपर हो सकती है. So there are hundreds of opportunities, hundreds of possible poses by which it can bind. Okay, and उनमें से हमारा least energy conformation, least energy pose कौन सा है, या हमारा जो biological, physiologically relevant conformation कौन सा है, that is, the challenge to identify. So आप कोई भी tool use करते हैं, for example Autodoc आप use करते हैं, so it gives you plenty of poses. Minimum by default it gives you 9 poses, 9 pose आपको मिलते हैं. तो उनमें से आप फिर स्कोरिंग के बेस पे यू चूज देम. सो फर्स्ट पार्ट इज पोज जनरेशन, सेकंड पार्ट इज स्कोरिंग. फर्स्ट में आपने पोज जनरेट कर लिए,
आपने लिया मॉलिक्यूल लिया, बाइंडिंग साइट लिया, यू जनरेटेड हंड्रेड्स ऑफ पोजेज, ओके, जो भी रेलेवेंट पोजेज है आपने जनरेट कर लिए. नाउ यू स्कोर ऑल दोज पोजेज. आपने फिजिक्स बेस्ड स्कोरिंग किया, सबका इंटरेक्शन स्कोर कैलकुलेट कर लिया, हाउ दिस नाइट्रोजन एटम इज इंटरेक्टिंग विद द रेजिड्यू हेयर. वो सारे इंफॉर्मेशन के बेसिस पे यू कैलकुलेटेड अ स्कोर एंड देन यू रैंक्ड देम. ठीक है, पोजेज को रैंक कर दिया. सो नाउ यू गॉट द टॉप स्कोरिंग पोजेज कि आपका ये मॉलिक्यूल का ये पोज टॉप स्कोरिंग है, मींस इट कैन बी द फिजियोलॉजिकल पोज. ठीक है, फिजियोलॉजिकल पोज, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड, हाउ दिस मॉलिक्यूल इज इंटरेक्टिंग विद दिस एंजाइम और रिसेप्टर इन आवर बॉडी. यही तो आइडेंटिफाई करना है ना हमें कि ये कैसे बाइंड कर रहा है. तो इसमें हम सारे पोज निकाल लेंगे, इसमें से जो लीस्ट एनर्जी का पोज होगा दैट वी ट्राई टू आइडेंटिफाई बाय यूजिंग द स्कोर. ओके, so I'll skip all these. So you have like you can do protein ligand docking, you can do protein docking, you can do protein nucleotide docking where you use the RNA or DNA. So now we coming to the steps. So does anyone know what are the steps in docking? Alok is doing docking, right? Okay. So what we have to do for docking is, the first thing is the receptor selection and preparation. Okay. So first of all you have to decide what is the receptor. Okay. Second thing is ligand selection and preparation. You have to decide the ligand. So we have found a receptor, we have found a ligand. The most important part is their preparation. And how do we prepare them? Because preparation, why it is important? Because आप जहाँ से 3D structure लेंगे receptor का, it might be that the bond order is not correct. You can see a lot of protein structures. They because X-ray में आपका electron density में you cannot see hydrogen. जब आप एक्सरे से स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं, यू कैनॉट सी हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा एक्सरे को. सो यू कैन सी कार्बन, नाइट्रोजन, अदर हैवी एटम्स बट नॉट हाइड्रोजन. सो दैट इज वाई बॉन्ड ऑर्डर आपका CH2 है कि CH3 है, NH है कि N है, दैट यू कैनॉट सी. सो दैट यू हैव टू फर्स्ट प्रिपेयर योर प्रोटीन एंड देयर आर सेवरल स्टेप्स इन प्रोटीन प्रिपरेशन. I will link you to a document where you can yourself go through that. And then again ligand also you have to prepare it. टोटोमर्स है ligand में, आयोनाइजेशन है, उसके बाद कन्फर्मेशन है, 3D स्ट्रक्चर है, all these you have to prepare. So आपने प्रिपेयर किया रिसेप्टर को, प्रिपेयर किया ligand को. Now you will dope them. You take this ligand, you put it into the active pocket, binding pocket, and then you will see how it is interacting. And then you calculate the score, and then you rank the poses. Is that clear? Yes. Okay. So do receptor preparation, target preparation, ligand preparation, docking and evaluation. So this we will. So for the tutorial, just quick tutorial, 10 minutes it will take. So we will do this, and we will skip this preparation step, and I will direct you to the document where you can read about that in detail. But we will do the docking and we will evaluate the docking results. Okay. Yeah. So these are some of the things you have to do for protein preparation. And then for molecule preparation, like salt, removal of salt, isomers, you have to, if there is a chiral carbon atom, then you have to make sure that it represents both R and S isomer, unless you know the exact stereochemistry of that molecule. And then there are multiple softwares, Autodoc, Glide, CDocker, ArgusLab, iGEM. There are plenty of them actually available. Many of them are free to use, so you can use many of them without any charge. But some of them, for example, Schrodinger or BioVR, Discovery Studio, so they are gold. They are, you have to pay for them. Okay, so as I said, like first is the pose generation, which is a search algorithm, and another one is scoring function. Search algorithm, it works like this. So it generates all the relevant conformations of the molecules in the binding pocket, and then it will generate all these poses. And then in the second one, in the scoring function, we use the physics based. There are different kind of scoring functions you see. So these are the different programs are using their own different scoring, algorithms, search algorithms. For example, Autodoc is using Lamarckian genetic algorithm, Doc is using shape matching, Plex is using incremental construction. So based on, and that is why all these different docking programs, they have
different docking scores. सबके docking score अलग है, सबके method अलग है. You cannot compare Schrodinger with the Autodock. You cannot say that okay, Autodock is better or Schrodinger is better. That is how it works. Scoring function, what it is doing is it is trying to calculate the binding affinity. So this binding affinity is a contribution coming from the van der Waal interaction, energy from van der Waal interaction, electrostatic interaction and hydrophobic interaction. So it sums up all these interactions. ध्यान है ना आपको बायोमोलिकुलर इंटरेक्शंस, तो वो सारे इंटरेक्शन जो भी पॉसिबल इंटरेक्शंस है सबकी कंट्रीब्यूशन को आपने सम करके एक स्कोरिंग फंक्शन बना दिया कि this molecule is interacting with this much energy with this protein. Okay, so there are different types of scoring functions like force field based, empirical and knowledge based. Okay, and then recently machine learning based scoring functions are there, and consensus means when you are using multiple scoring functions in one go, like आपने single scoring function की जगह कई सारे स्कोरिंग फंक्शन को यूज करके और उनके सम करके उनको यूज कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज कंसेंसस. ओके, सो इन दिस ट्यूटोरियल स्पेसिफिकली व्हाट वी विल बी गोइंग टू डू इज वी विल बी गोइंग टू यूज द जीनीना व्हिच इज अ डेरिवेटिव ऑफ ऑटोडॉक वीना. ऑटोडॉक वीना किसने सुना हुआ है? ऑटोडॉक वीना सुना हुआ है ना, कल किया आपने? कल यहाँ पे बताया था ना, कल आपने सीखा होगा है ना. तो आज हम करेंगे ऑटोडॉक वीना का ही एक भाई है या बहन कह लीजिए, उसका नाम है जीनीना. ठीक है, थोड़ा सा फेमिनाइन नेम है तो उसको जीनी नाम बोल रहे हैं, उसको बहन बोल रहे हैं. तो जीनीना इज अ डीप लर्निंग बेस्ड स्कोरिंग फंक्शन. तो इसमें डीप लर्निंग भी आपका इन्वॉल्व हो गया और आपका जो बेसिक जो ऑटोडॉक है उसी के बेस पे बना हुआ है, राइट. सो व्हाट इट डज इज you take a receptor, you take a ligand, and then you dope them, and then it has different options like CNN scoring refinement, rescore and all. So based on the option which we use, so it rescores the poses. So what Autodock Veena is doing, Veena generates different poses, right? And then after generating these different poses, Geena is rescoring those poses, okay, using the CNN, convolutional neural network, deep learning. So using deep learning, it is rescoring the poses generated from the Geena. Okay, so this we will see. Yeah, these are different doping programs. They have different scoring functions like dope, autodope. These are using force field based scoring. Empirical scoring is being used by Xscore, Surflex, Civil. Knowledge based scoring are used by EMF, drug score, smoke, gold. Application you already know. We can do virtual screening, identify novel hit compounds. You can do lead optimization. Like once you have got a molecule, how you can make a better one. So you can add the functionalities and try to see if it is making it better. Bioremediation, and again everything has got some limitation. So the limitation is that the scoring functions, they are not always accurate because we have no way to control over their accuracy, and then some intermolecular interactions are hardly predicted and accurately determined, such as solvation effect and entropy change, which we cannot predict by using models. And then accurately dealing with the water molecule in the binding site is also a challenge. You might have seen that bound water molecule is a term being used where when it is being replaced, it leads to a lot of enthalpy contribution. Okay, this speed and then this also. So here is a comparison between different docking accuracy of different programs: Surflex, Light, Gold, Glide, Thread, Dope, FlexX, and you can see like most of them they behave pretty well. But again, there is no best docking program. So every program has its own limitation and advantages. Okay. Scoring accuracy. Okay, so now what I want you to do is I want you to type this URL in your browser, Chrome. I'm sorry, I'm going a bit fast, but if you have any questions, you can. So I want you to type this https://URL.at. This one is small o. It's not 0 actually, it's O, capital J, N, Q and 7.
you got it? This one? Shall I zoom in? So what you have to do is you have to type this https://short url.at /0 not 0 small o jnq7 ओपन हुआ क्या आपके यहाँ पे प्लीज सबके यहाँ पे कोलैब ओपन हुई है ना हाँ एग्जैक्टली यू विल सी समथिंग लाइक दैट समथिंग लाइक विच आई सी ऑन माई स्क्रीन ऐसा आपको दिखेगा so we'll see something like this and this is called as collaboratory Google का जो cloud computing है that is this actually so what we will be doing is you will not need any fancy computer any powerful computer everything you need is just a device which you can connect with internet with the Chrome इवन यू कैन डू रन इट ऑन योर मोबाइल एज वेल ये जो ट्यूटोरियल है कोई भी ट्यूटोरियल जो मैं करवाऊंगा आफ्टरनून में भी यू कैन डू इट विद योर ऑन योर मोबाइल एज वेल जनरली हमें प्रॉब्लम आती है ना कि मेरे लैपटॉप में चल नहीं रहा है रैम कम है पावर कम है स्पेस नहीं है इंस्टॉल नहीं हो रहा है वो सब इश्यूज नहीं है ठीक है सो दिस इज अ वेरी हैंडी टेक्निक वेयर यू कैन डू एवरीथिंग इन द क्लाउड यूजिंग देयर कंप्यूटेशनल पावर बाय जस्ट कनेक्टिंग इट टू द इंटरनेट राइट So Google Colab is one of the way to do that. ठीक है सबका ओपन हो गया ये वाला जी सर so now what so you just follow me अब मैं जैसा कहूँगा वैसा आप करते रहिए and you will see so what you have to do is you have to click on the file click on the file and then save a copy in drive so once you will click on save a copy in drive so it will save a copy of so it will show you something like this notebook copy complete okay and once you do notebook copy complete you open it in new tab सर रिपीट वन सेकंड फाइल पे चले गए वहां पे आएगा सेव अ कॉपी इन ड्राइव फाइल पे गए आप हो गया आपको गुड जिनका हो गया वो अपने पड़ोसी की हेल्प करें है ना अपने नेबर्स की आप हेल्प करिए जिनका हो गया है जिनका नहीं हुआ है हो गया आपका गलत टाइप किया यहाँ पे टाइप नहीं करते ठीक है सर unable to copy there was an error loading this notebook ensure file is successful and sign again आपका भी एरर है क्या नहीं सर इसमें हाँ साइन इन आपको करना पड़ेगा लॉगिन करना पड़ेगा आपको अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा ना तभी तो वो कॉपी करेगा आपकी गूगल अकाउंट में एक बार फिर से करिए मुझे लग रहा है कुछ सबका हो रहा है आपका बिकॉज वी आर यूजिंग द गूगल क्लाउड कंप्यूटर्स सो फॉर दैट यू नीड टू यूज योर जीमेल एक्चुअली आप जीमेल से लॉगिन करेंगे तभी आपको एक्सेस मिलेगा ना गूगल का क्या हुआ ये आपने देखो ये सही है क्या HTTPS होता है HTTPS नहीं होता HTTPS कितनों का हो गया कॉपी ओके गुड आप प्लीज हेल्प योर नेबर्स आपके आसपास जो है उनकी हेल्प करिए मेरे पास कोई वॉलंटियर मैं लेकर के नहीं आया हो गया आपका
अपना गूगल अकाउंट खोलिए, जीमेल खोला है, जीमेल जीमेल हाँ, ओपन इन न्यू टैब, ओपन इन न्यू टैब। जीमेल अपना खोलिए, जीमेल जीमेल व्हाट इज योर प्रॉब्लम? मेल लॉगिन किया है? यहाँ पे सर्च में मत डालिए, इसको यहाँ पे ऊपर डालिए ना। हाँ, एड्रेस बार में उसको सर्च, गूगल सर्च में नहीं डालना है, वो एड्रेस बार में डालना है आपको, बिकॉज दैट इज अ वेब एड्रेस। कॉपी करना है, गूगल से कॉपी करना, यहाँ से कॉपी कर लो एक। कॉपी करना है। सो वाई वी नीड टू कॉपी इट, बिकॉज जो मैंने लिंक शेयर किया है वो मेरी गूगल ड्राइव में है, राइट, एंड यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस माई गूगल ड्राइव। आपके पास परमिशन नहीं है ना, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी गूगल ड्राइव में उसको कॉपी करना पड़ेगा। तो दैट इज वाई जस्ट, अगर आप उसको वहीं पे रन करेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। सो आपने क्या किया, आपने अपने एक लोकल कॉपी आपकी ड्राइव में कॉपी कर लिया है, अब वो हमेशा आपकी उस ड्राइव में रहेगी। तो ये वर्कशॉप खत्म होने के 6 महीने, 1 साल, 5 साल बाद भी आप उसको रन कर सकते हैं, ठीक है। हो गया आपका, हो गया क्या? ठीक है, ओके। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड बिकॉज़ वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। Okay, so as I said, we are using deep learning here, okay, and deep learning is little bit, power hungry, उसको थोड़ा सा एडवांस कंप्यूटेशन चाहिए, तो हम लोग इसमें GPU यूज करेंगे। We will be using the GPU, ठीक है। So the second command, ये जो आपका ये वाली कमांड है, सेकंड वाली, यहाँ से सबको दिख रहा है, विजिबल है क्या? जूम करो थोड़ा। So this command NVIDIA SMI, it is telling you, it is letting you know whether Google has given you a GPU or not. तो जस्ट आपको क्या करना है, प्ले बटन पे क्लिक कर दीजिए, लेफ्ट माउस जो है प्ले बटन पे क्लिक करिए। इफ यू कैन सी ऑल दिस, यहाँ पे आपको NVIDIA Tesla T4 GPU लिखा हुआ आ रहा है। अगर ये ऐसा दिख रहा है आपको, इट मीन्स यू हैव गॉट अ GPU। देखिए एक बार करके प्ले बटन पे क्लिक कर दीजिए। हो गया एवरीवन? इसमें तो सिंटैक्स एरर आ रहा है सर, क्या कह रहे हैं? सिंटैक्स एरर आ रहा है, क्या एरर? सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर? हाँ नहीं आना चाहते, चेंज कर दिया क्या उसको? नहीं सर, ये सर इसमें सर जैसे हमने वैल्यूज कैन डिफरेंट और वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है। देखिए सर, ये ठीक है यहाँ से अरे शॉर्ट URL इसको थोड़ी कॉपी करना है, यहाँ पे इसको डिलीट करिए। 42 है। अच्छा, आपके वाले में पहले में शॉर्ट URL वाला आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, आपने वो क्यों टाइप किया उसको? ये कॉपी नहीं करना है, इसको कॉपी नहीं करना है, इसको हटाइए, यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ऐसे डिलीट कर दीजिए। नहीं, आप ऊपर एक्चुअली वो NVIDIA SMI वो कमांड डालिए उसमें, NVIDIA.SMI वो था यहाँ पे, आपने कंट्रोल भी दबा दिया होगा। क्या सबका आ रहा है ना ऐसा? इट मीन्स कि आपका GPU गूगल हैज असाइंड योर GPU, ठीक है। तो इसको ऑफ भी हम कर सकते हैं, रन टाइम में जाएंगे, असाइन रन टाइम, तो आपको ये कर देगा GPU CPU TPU ऐसा करके, बट वो भी हम नहीं देखेंगे। 64 हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ला T4 आ रहा है ना, तो आपका GPU आपको मिल गया है। Now you are connected to a GPU, that's what we needed only, ठीक है। हो गया सबका? आ गया ना, बस सही है। चल रहा है ना? ये जो सर
आ गया सही है ना? ठीक है, सो नाउ वी कैन सी दैट वी हैव गॉट द जीपीयू. सो नाउ वी विल मूव विद द नेक्स्ट कमांड. तो नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, इसमें जस्ट एक pwd मीन्स होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी. आपको थोड़ा सा यूनिक्स आपको सीखना पड़ेगा. यूनिक्स और पाइथन अगर आपको आता है सो यू कैन डू मैजिक. सो इसमें आप जस्ट pwd वाला रन करिए, प्ले बटन पे अगेन प्रेस करिए, प्ले बटन पे. सो जैसे आप प्ले बटन पे प्रेस करेंगे सो यू विल सी द कंटेंट. ऐसे कंटेंट करके आपका आ गया कि आप इस डायरेक्टरी में हैं, कंटेंट वाली डायरेक्टरी में हैं आप. ठीक है. सो नेक्स्ट हमने प्रेस किया ls. अगेन ls इज अगेन कमांड. वो लिस्ट कर देता है क्या क्या है. तो आपके इसमें सैंपल डेटा करके एक फाइल है. ठीक है. उसके बाद फिर आपने क्या किया, नेक्स्ट में आपने इस वाले को प्रेस करिए, प्ले करिए mkdir ACHG को. इसको रन कर दिया. ठीक है. pwd रन किया, ls रन किया, फिर आप नेक्स्ट वाला जो mkdir है उसको रन करिए. सो mkdir मीन्स होता है मेक अ डायरेक्टरी. मेक डायरेक्टरी. mkdir मीन्स मेक डायरेक्टरी विद द नेम ACHG. ठीक है. सो ACHG नाम से उसने एक डायरेक्टरी बना दिया यहाँ पे. सो नाउ यू कैन मूव इनटू दैट डायरेक्टरी cd ACHG. So now you can see you have moved yourself into the content/ACHG. So now you are in this directory. सर ये सब जो हमने किया आइडिया, हाँ मैंने वही, आपने कॉपी किया क्या यहाँ से? फाइल कॉपी नहीं किया आपने ना? आपने इसको बंद करिए, कैंसिल करिए. इसको आपको अपनी इसमें कॉपी करना है ना? आपने किया था क्या नहीं? हाँ, फाइल सेव ए कॉपी इन योर ड्राइव. ये सेव कॉपी इन ड्राइव. ठीक है. कॉपी कर रहा है, यहाँ पे आएगा ओपन इन न्यू टैब. उसमें आप रन करेंगे क्योंकि अभी जो आप ये कर रहे हैं ये मेरी ड्राइव से है. सो यू डोंट हैव एक्सेस टू राइट इन माय ड्राइव, राइट? आपने कुछ चेंज किया है क्योंकि ये आप ही ने कुछ चेंज किया, कुछ डिलीट कर देगा आपने, क्योंकि सबका वो सबने कॉपी किया तो वही सेम आएगा ना. ओपन कर दिया आपने भी, बस अब रन करते जाइए एक एक करके, शुरू स्टार्टिंग से एक एक करके. इस पर रन क्लिक करिए. हाँ, तो इसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट रन करिएगा. ठीक है. ओके. सो आर यू विद मी टिल हियर? cd ACHG. तो सब लोग, cd का मतलब होता है मूव इनटू द डायरेक्टरी, है ना? हाँ, मूव इनटू द डायरेक्टरी, है ना? तो वो cd मतलब आप कहाँ मूव करना आपको, तो आप पाथ देते हैं उसका cd ACHG /ये/वो ऐसे करके आप बैक भी जा सकते हैं, डबल डॉट स्लैश ये ऐसा करके. सो नाउ वी हैव मूव्ड इनटू द डायरेक्टरी कॉल्ड ACHG. सो नाउ वी आर इन दिस डायरेक्टरी. सो आई वांट एवरीवन ऑफ यू टू बी इन दिस डायरेक्टरी. सब लोग इस डायरेक्टरी में आ गए क्या? क्या कहते हैं? सारे स्टेप बाय स्टेप सब सारे रन करने हैं. ईच सेल यू हैव टू रन. क्या CD को भी रन करना है सर? CD है. हाँ सारी सेल्स को रन करना है. cd ACHG करना है, इसको भी रन करना है. इस पे क्लिक करेंगे cd ACHG. नेट कनेक्ट करिए. हाँ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. ये ऑलरेडी रन है तो इसमें कोई इशू नहीं है. बच्चे अपना कर लेंगे सब लोग अपना. ठीक है. ये cd ACHG किया आपने सबने. डू यू सी दिस content/ACHG? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन द राइट डायरेक्टरी. अगर मान लो अभी आपका कोई ये जो पार्टिसिपेंट है आपको फ़ोन कर रहे हैं कि मैं लेट हो गया थोड़ा, मुझे आना है, कहाँ पे चल रहा है, तो आप कह दो कि 101 नंबर रूम में, 101 है मान लो, है ना? लेकिन वो पहुंच जाए 103 में, तो क्या होगा? उसको कोई मिलेगा नहीं वहाँ पे, राइट? सो यू नीड टू बी इन द राइट डायरेक्टरी, राइट रूम, क्योंकि आपका डेटा सारा वहाँ पे होगा. ठीक है. तो अभी आपने cd ACHG किया. सो नाउ यू आर इन द कंटेंट ACHG डायरेक्टरी में आप आ गए. नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी विल बी गोइंग टू डू इज वी विल बी, बिकॉज गूगल कोलैब एक ब्लैंक नोटबुक है, इसमें जो भी आपको टूल यूज़ करने वो आप वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं. जैसे आप रन कर लेंगे वो सारा अनइंस्टॉल हो जाता है. टेम्परेरी स्पेस आपको क्योंकि गूगल ने दिया है. ठीक है. सो नेक्स्ट वी विल रन दिस सेल वेयर इट इज डाउनलोडिंग द Gnina program.
ये वाला रन करिए, इसको इस पे प्ले करिए। अरे फाइल यहाँ फाइल हुआ। इस वाले को रन करेंगे, सो यू विल सी ऑल दिस कनेक्टिंग टू दिस रेपो, डाउनलोडिंग, ऐसे ऐसे करके सारे आपको अपडेट दिखाएगा। सो देखिए चल रहा है क्या, यस हो गया ना, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक इट्स बेयरली फ्यू केबी एक्चुअली, किलोबाइट्स है, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमें क्या, आपने डायरेक्टली सारे रन नहीं किए होंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे रन किए आपने क्या? नहीं नहीं, सारे एक एक करके सारे रन करो। किनका हो गया है? इधर हो गया है, ओके गुड। सो वंस यू हैव डाउनलोडेड दिस, रिजॉल्विंग गिटहब, कनेक्टिंग टू गिटहब, ठीक है। सो नेक्स्ट व्हाट वी विल डू इज, हमने एक एग्जीक्यूटेबल डाउनलोड कर लिया है। एग्जीक्यूटेबल होता है कंप्यूटर प्रोग्राम, तो प्रोग्राम है वो डाउनलोड हमने कर लिया है। नेक्स्ट इज वी हैव टू गिव इट अ परमिशन, उसको रनिंग की परमिशन चाहिए। तो आप ये नेक्स्ट वाला ये रन करेंगे, chmod +x gnina, इसको क्लिक करिए, नेक्स्ट को रन करिए। हो गया ना, जैसे ही वो रन हो जाएगा उसके आगे ग्रीन टिक आ जाएगा। उसके बाद फिर उसका नेक्स्ट वाला कर सकते हैं, नेक्स्ट वाले में chmod /gnina version, so just to see which version you have downloaded and installed and are using. so आप इसको इस पर रन करेंगे तो you will see version 101 built 23rd March 2021 and this you can change as well. आपको अगर अपडेटेड वर्जन चाहिए तो आप उसका जो लिंक है जीनीना की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से वो लिंक कॉपी करेंगे, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, गॉट इट। सो नेक्स्ट इज नाउ वी हैव इंस्टॉल्ड द सॉफ्टवेयर विच वी आर गोइंग टू यूज। ओके, नाउ व्हाट वी विल नीड, डॉकिंग के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन और लाइगेंड की स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, और उन स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो प्रिपरेशन वाला स्टेप क्योंकि वो लेंदी है, विल नॉट कवर, बट आई विल टेल यू फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न दैट, राइट। सो और वो आपने किया भी है ना, कल ऑटोडॉक ट्यूटोरियल में किया था प्रोटीन प्रिपरेशन, किया नहीं था? ओके, तो मैं आपको बताऊंगा, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ वी हैव गॉट द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड। नाउ नेक्स्ट थिंग इज टू गेट द प्रोटीन। सो हियर वी विल बी गोइंग टू यूज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्टरेज 1EVE, प्रोटीन डेटा बैंक RCSB, ठीक है, PDB प्रोटीन डेटा बैंक, वहाँ पे 1EVE जो है वो एसिटिल कोलिनेस्ट्रेज का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है विद डोनेपेजिल विच इज़ एन एंटी एल्जाइमर डिजीज ड्रग, एंटी-AD ड्रग है, आपका एसिटिल कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर है, दैट इज को क्रिस्टलाइज, ऐसे बाउंड करके वो ड्रग है। सो व्हाट यू wget इज टू डाउनलोड दैट फाइल। सो यू प्रेस दिस वन, यू प्ले दिस वन, you get the wget, download the file 1EVE, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1EVE.pdb, 422K PDB है वो आपकी डाउनलोड हुई इन 0.05 सेकेंड्स। हो गया, डन हो गया। उसको रन करिए, सो दैट फाइल विल गेट डाउनलोडेड, आपका वो डाउनलोड हो जाएगा। I want every one of you to do that because that is the only way you will learn. Just देखने से आप नहीं सीखेंगे। हो गया, सबका हो गया, कोई बचा है क्या? हाँ, ग्रीन आ गया इसका भी, बस हो गया ग्रीन। अंतिल हाँ हो गया। अंतिल अनलेस आप उसमें कुछ चेंज करेंगे, किसी में कोई एरर नहीं आएगी क्योंकि वो हमने ऑलरेडी उस हिसाब से बनाया हुआ है, वो प्रूफ रीड किया हुआ है। सर ये 0.1 सेकेंड्स आ रहा है। ये सेविंग फेल्ड दिखा रहा है, सेविंग फेल्ड, तो आपका डाउनलोड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, या आपको कनेक्टेड नहीं होगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, सो ओके, मूविंग, कोई बात नहीं, वो नेट की कनेक्टिविटी पे डिपेंड है ना, कितनी देर में डाउनलोड हुआ है। अब उसको छोड़िए, ग्रीन टिक आया है मतलब डाउनलोड हो गया फाइल। रेड में कुछ सेविंग का इशू आ रहा हूँ, ऊपर दिखा रहा हूँ कोने में कुछ छोटे में कुछ सेव।
जिनका एक बार एरर वो दोबारा से कर ले उसको, क्योंकि वो कई बार होता है कि कनेक्टिविटी का इशू रहता है। ठीक है, सो नाउ वी हैव डाउनलोडेड दिस 1 EVE। सो आप इसको देख भी सकते हैं, PDB वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे 1 EVE डालेंगे, आप देखेंगे कि डोनाबेसिल को क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। सो को क्रिस्टल मीन्स you have the डोनाबेसिल ड्रग बाउंड टू दी एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। ठीक है, गॉट इट। सो नाउ व्हाट वी विल बी गोइंग टू डू इज वी विल टेक आउट द अभी हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, तो अभी हमें लिगेंड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेट कर देंगे। ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास है, डोनाबेसिल बाउंड टू दी एसिटिल कोलिनेस्टरेज, अब इन दोनों को सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेट करने का जो कमांड है उसमें हम यूज करते हैं ग्रैप। तो वी यूज द ग्रैप कमांड। इस वाले को रन करिए, ग्रैप को जब रन करेंगे, सो इट विल टेक आउट दी ऑल दी एटम्स विच आर रिलेटेड टू द रिसेप्टर एंड पुट देम इनटू receptor.pdb। इसको रन करिए, ग्रैप एटम 1 EVE, so it will make a receptor PDB. Again, if you run the grep ligand PE20, which is the name of the ligand, it will create a ligand PDB. अब किस पे क्लिक करना है सर? ये दोनों सेल रन करिए, इसको रन करिए, फिर इसको रन करिए। पहला वाला सर, नीचे वाला। हाँ सर, हो गया। हो गया, दोनों रन हो गया। So now we have installed the program, now we have got the receptor, now we have got the ligand। ठीक है, so ligand और receptor हमने अभी डायरेक्ट वो किया है, बट प्रिपरेशन वाला स्टेप रह गया है, वो मैं आपको बताऊंगा आप कहाँ से उसको कर सकते हैं। ठीक है, because that takes some time actually। So next is we will use the Genina and run the docking। So next आपको क्या करना है, इस वाले को रन करना है, बट उससे पहले आप समझिए क्या है इसमें। So Genina is your program, okay, -R is your receptor, -L is your ligand। So instead of this, अगर आपके पास मान लो 100 ligands हैं सिंगल फाइल में, SDF फाइल में, so you can put those ligands here as well। आपको एक एक ligand के लिए बार बार डॉकिंग करने की जरूरत नहीं है, you can put multiple ligands in this command। ठीक है, एंड उसके बाद आपका ऑटो बॉक्स ligand है। ऑटो बॉक्स ligand मीन्स फॉर डॉकिंग यू हैव टू डिसाइड वेयर यू वांट टू डॉक योर मॉलिक्यूल। जैसे प्रोटीन तो बहुत बड़ा है, तो उसमें कहाँ पे डॉक करेंगे आप, सो दैट बाइंडिंग पॉकेट और डॉकिंग साइट यू हैव टू डिसाइड, राइट। सो दैट वो डिसाइड करने के लिए आप कोऑर्डिनेट्स देते हैं कि मुझे इस जगह पे चाहिए। तो इसमें हमने ऑटो बॉक्स ligand में क्या कर दिया, हमने बोल दिया कि ये जो ligand जहाँ पे बाउंड है वहीं पे मुझे डॉकिंग करना है। सो वी हैव गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ligand.pdb वेयर आई वांट टू डॉक माय ligand.pdb। सो हेयर अगर आप कोई नया मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर पबकेम से पैरासीटामोल डॉक करेंगे, वो भी हम कर सकते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम वी आर लाइक रनिंग शॉर्ट। सो आप पबकेम ओपन करेंगे, वहाँ से पैरासीटामोल की SDF फाइल डाउनलोड करेंगे, उसको यहाँ पे डालेंगे, एंड देन स्टिल यू आर यूजिंग lick.pdb फॉर दी ऑटो बॉक्स। जहाँ पे lick.pdb है वहाँ पे वो पैरासीटामोल को डॉक करेंगे, एंड यू कैन सी दी डिफरेंस दैट वी कैन ऑल्सो सी, विल सी। एंड -O इज द आउटपुट किस फॉर्म में आपकी चाहिए, सो इट विल सेव योर आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ doc.sdf। एंड सीड इज यू नो द, ये पोस्ट जनरेशन जब करता है तो सीडिंग मीन्स ये जेनेटिक एल्गोरिदम में काम करता है। कि मेथड आपका है जेनेटिक एल्गोरिदम क्या है, आपका पेरेंट्स से प्रोजेनी जनरेट होती है और वो चलता रहता है कंटिन्यू, तो कहाँ से सीडिंग करेंगे वो एक रैंडम नंबर है एक्चुअली, दैट वी डोंट नीड टू टच। ठीक है, सो इसको अब रन करिए, यहाँ पे इस वाले प्ले को बटन दबाइए। सो व्हाट यू विल सी इज, यू विल सी दोज स्टार कमिंग फ्रॉम 0 to 100। 0 to 100% आपका स्टार चलेगा लाइक दिस। यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, स्टार धीरे धीरे 100 की तरफ बढ़ेगा। जब आप, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये रन हो चुका है, सो आई एम नॉट डूइंग इट अगेन, बट फॉर यू इट विल go from 0 to tick 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 till 100। चल रहा है, कितना हो गया 50, गुड। and then you can see this will be the output score, docking score. This is your docking score. किसी कंप्लीट हुआ क्या? ओके गुड, इधर किसी का
सर हो रहा है चल रहा है अभी, ओके। So now what it has done is it has doped that molecule donepezil जो को क्रिस्टल था उसी को इसने उठा करके एक्सट्रैक्ट करके फिर से डोप किया है बाइंडिंग पॉकेट में, एंड देन इट हैज जनरेटेड दीज 9 डिफरेंट पोजेस। बाय डिफॉल्ट ये 9 करता है, आप 1 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 32 भी कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा पोज जनरेट करेंगे उतना टाइम लेगा ऑब्वियसली, ठीक है। दिस इज एफिनिटी किलो कैल पर मोल, दिस इज CNN पोज स्कोर, दिस इज CNN एफिनिटी। सो दिस इज नॉर्मल वीना स्कोर, ऑर्डोग वीना स्कोर। This is the score coming from the GNINA, which is based on the convolutional neural network, deep learning based rescoring, ठीक है। इतना हो गया, सभी का पोज जनरेट हो गया। Now the most interesting thing is to see how those poses look like, है ना, वही तो important है ना। So now we move to the next cell. So we will use this Pi3D-Mon. So we use Pi3D-Mon. So you have to install again, जैसे मैंने बताया कि कोलैब में आप कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कुछ भी रन कर सकते हैं। आपको अलग अलग सेपरेट चीज़ें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप उसी नोटबुक के अंदर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, कोड भी लिख सकते हैं, पाइथन भी रन कर सकते हैं, C++ भी रन कर सकते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी और यू कैन से पावर ऑफ द कोलैब नोटबुक। इसमें आप इस पर क्लिक करेंगे, pip install Pi3D-Mon, so you will get the it is installed, and then in the next cell, so you can have a look at the, so these are just code to visualize the output poses, and then you can see how these, so in gray this is your co-crystal pose, and then in green you have these different 9 poses which are animated to go from one to another, ठीक है। तो इसमें आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा एनिमेशन का एनिमेट इंटरवल 2500 है। सो इस वाले को अगर मैं इस 2500 को अगर मैं 25000 करता हूँ, सो दे विल, वो थोड़ा टाइम लेंगे चेंज होने में, पोज 1 to 2 में जाने में टाइम लेंगे। वो करके देखिए, आप मॉडिफाई करके देखिए। इसके बाद क्या करेंगे, फिर इंटर कर देंगे क्या? We have to run, yes. हाँ, इसको फिर से रन करना पड़ेगा। कुछ भी मॉडिफाई करेंगे आपको उस सेल को फिर से रन करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? ये आपने रन कर दिया, पोजेस आपको दिख रहे हैं। नाउ एनिमेशन को आपको स्लो करने के लिए, जैसे आपका फर्स्ट पोज है, ठीक है, तो 2500 की जगह आप उसको 25000 कर दीजिए और फिर से रन करिए उस सेल को। जब आप उस सेल को फिर से रन करेंगे, so those molecules will stay there for longer time, थोड़े लंबे टाइम के लिए वहाँ पे रुकेंगे। 2500 है पहले, उसको 1000 कर दीजिए। नहीं चेंज हो गया, जूम ये इंटरेक्टिव है एक्चुअली। सो दिस इज इंटरेक्टिव, सो यू कैन जूम इट, जूम आउट, रोटेट इट, ठीक है। अभी ये देखिए आपका फर्स्ट पोज है, जो भी थोड़ी देर के लिए तो फिर सेकंड पोज आपका आएगा। सो ना, एंड देन यू कैन कंपेयर दोज पोजेस। फॉर एग्जांपल आपका जो फर्स्ट पोज है, इज दैट क्लोज एनफ टू दी को-क्रिस्टल पोज? को-क्रिस्टल वाले के सेम है क्या एग्जैक्टली, वो देखिए। डोनापेजिल जो आपका है, ये आपका डोनापेजिल जो है उसमें हाइपरेजीन है, ठीक है। तो हाइपरेजीन जो है वो क्या, ये फर्स्ट पोज जो है वो आपका को-क्रिस्टल पोज है, उस एग्जैक्टली सेम ओरिएंटेशन है कि नहीं, या आपका थर्ड पोज जो है वो उस ओरिएंटेशन में है, दैट यू हैव टू सी। वो आप कंपेयर करके बताइए मुझे। आपका जो ये जो पोज आप जनरेट हो रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, राइट? जी सर। सो विच पोज इज
सिमिलर टू, फॉर एग्जांपल इसमें देखो आप, इसमें अपोजिट है ना, ये वाला आपका मोइटी साइक्लोहेक्साइल है, वो इस तरफ है, ये जबकि सेम है, ठीक है। जो ये वाला ग्रे वाला को क्रिस्टल पोज है, राइट। सो को क्रिस्टल पोज के सिमिलर कौन सा पोज आपका है, बिकॉज इट इन सम ऑफ द पोजेज इट इज फ्लिप्ड, ऐसा आपका है तो इसमें फ्लिप्ड है कुछ में, तो वो फ्लिप्ड कौन सा है, नॉर्मल कौन सा है, बेटर कौन सा पोज है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। क्या हो गया? आपने इससे ऊपर वाला रन नहीं किया होगा ना, फिर आपने वो सीडी वाला सही नहीं होगा, सीडी ये सीडी फिर से स्टार्टिंग से सारे स्टेप से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग से। अगर आपने कोई भी एक सेल छोड़ दी रन करना तो वो आपका मिसमैनेज हो जाएगा, है ना। आपने 125 कर दिया है, नहीं 25,000 कर दिया, 2500 कर दिया। अच्छा सर, ये जो आप जो सर आपने किया है 2500 पे किया है, जो आपका है, जैसे हमने 25,000 किया है तो आपने 2500 का है ना, तभी तो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है। 2500 मिली सेकेंड्स है वो, तो वो जल्दी चेंज होगा। सर ये पता तो चल जा रहा है कि चेंज हो रहा है, मतलब कौन सा सिमिलर आ रहा है, कौन सा, लेकिन नंबरिंग कैसे पता चलेगा? नंबरिंग उसी से पता लगेगी ना, आप फर्स्ट उसको स्लो करिए ना, तभी आपको पता लगेगा। जैसे आप स्लो करिए इसको, 25,000 करके रन करिए तो 1 से शुरू होता है वो, ठीक है, इसलिए मैंने उसको आपको बताया ना। इसको रन करेंगे तो जो अभी पहला पोज आएगा वो फर्स्ट है, ठीक है। अभी आप ऊपर करिए इसको, रोटेट करिए इसको, हाँ, अभी आप ये फर्स्ट पोज है तो ये अपोजिट है, दिख रहा है। सेकंड पोज देखिए, अभी सेकंड जब चेंज होगा उसको जरूर नहीं 25,000 ही करना है, 2500 था तो उसको 5,000 भी कर सकते हैं, 10,000 भी कर सकते हैं, जितने टाइम में आप फास्ट हो जाएगा ना। 2500 है तो थोड़ा 10 टाइम्स देखिए, अब ये देखिए, ये वाला पोज देखिए, ये सही है, बेटर है ना उससे, क्योंकि इसमें आपका जो पाइपरीडीन है वो उस तरफ है, राइट। सो इनका सेकंड पोज बेटर है, किसी का फर्स्ट पोज बेटर होगा। ठीक है, सो देन नेक्स्ट इज ls, you can run ls to see what you have generated, कौन कौन सी आपने फाइल जनरेट की है, तो आप ls कमांड से देख सकते हैं। सो यू कैन सी हियर वी हैव द ligand pdb, रिसेप्टर pdb, doc.htf, और doc वाला जो है आपका आउटपुट फाइल है ना, वही हमने लिखा था ना उसमें आउटपुट के लिए। एंड देन नेक्स्ट यू कैन डाउनलोड ऑल दीज फाइल्स फ्रॉम गूगल ड्राइव इनटू योर डाउनलोड फोल्डर। इसका जब आप रन करेंगे तो एक वो जिप फाइल बना करके डाउनलोड कर देगा, एंड दिस रिजल्ट विल बी विद यू कैन एनालाइज इट विद एनी अदर सॉफ्टवेयर एज वेल, ठीक है। बिकॉज इसको आप जैसे ही क्लोज कर देंगे यहाँ से, ये सारा डेटा आपका चला जाएगा, बिकॉज ये तो गूगल के सर्वर पे चल रहा है ना, तो इसको बंद करते ही सब बंद हो जाएगा। तो इसलिए आप अपना डेटा डाउनलोड करने के लिए इसको रन करेंगे, सो यू कैन डाउनलोड ऑल दिस डेटा, सेव इट लोकल कंप्यूटर, विजुअलाइज इट इन एनी अदर प्रोग्राम एज वेल, ठीक है, उसको कर सकते हैं। सर हम इसमें कौन सा डाउनलोड करें, जिप फाइल? इसको आप ये रन करिए, अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। सर इसमें ये देखिए, मतलब ये वाला पैरेलल हमारा ये सही है। हाँ, ये बेटर है ना। पता कैसे चलेगा कि पहला है कि दूसरा है? इसमें एक चीज़ होता है RMSD, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। जो आपका को क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उससे आपका डोकिंग पोज कितना डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर मान लो आपका को क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसे है और डोकिंग पोज आपका ऐसे है तो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, तो RMSD उसका डिफरेंट आएगा बहुत ज़्यादा। जब आप इस एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा, तो इसमें जो रूट मीन स्क्वायर डिफरेंस मीन्स ये जो इस एटम का इस एटम से कितना डिस्टेंस है उसके बेस पे वो कैलकुलेट करते हैं, तो RMSD कैन बी कैलकुलेटेड। पता कैसे चलेगा कि 1 है कि 2 वाला कौन सा? वो आप उसको स्लो करके करेंगे ना, तब होगा ना। आप उसको स्लो करिए, चेंजिंग स्लो करिए,
इंडिविजुअली सबका स्नैपशॉट लेके रख लीजिए. You can float the interactions as well. ठीक है, कोई लोग डाउनलोड कर पाए हैं? ओके गुड. सो आप जब उसको जिप फोल्डर को खोलेंगे तो उसमें आपका आउटपुट फाइल्स वगैरह सब होगी. उसको आप किसी भी प्रोग्राम में, मेस्ट्रो में, डिस्कवरी बाय वे स्टूडियो में ओपन करके यू कैन विजुअलाइज देम. ठीक है. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू दिस. चलिए, ये जो प्रिपरेशन वाला है वो आपको लंच के बाद वाले सेशन में बताएंगे, जो नेट से कनेक्टेड नहीं है. सो कोई क्वेश्चन किसी का बिफोर गोइंग फॉर लंच? एनी क्वेश्चन? ये ओपन करना हुआ तो किसको? सर ये प्रोग्राम क्या कह रहे हैं? फिर सर गूगल में आके फिर से हमको ये स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, फिर दोबारा हमको ये यूज़ करना है. फिर से करना, फिर से आप करिए वही. अभी ये आपका इसमें सेव हो गया है, तो आप colab.google.com टाइप करेंगे तो आपके उसमें ये दिखाएगा, आपकी गूगल ड्राइव में ये फाइल दिखाएगा, ये नोटबुक दिखाएगा. तो उसका ओपन कर लीजिए, colab.google.com. अभी स्मॉल में रहेगा ना सर? प्रिपरेशन वाला मैं बताऊंगा, वही मैं कह रहा हूँ ना सर प्रिपरेशन वाला. बिना प्रिपरेशन है ना, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो जाएगा. बट आप अपना कोई प्रोग्राम जैसे अपने लाइगेंस लेते हैं तो यू हैव टू प्रिपेयर. वो स्टेप्स में बताऊंगा. ठीक है, ठीक है, सब करें. डाउनलोड कितने जाएगा सर ये? डाउनलोड कहाँ होता है लैपटॉप में? नहीं जिप फाइल में डाउनलोड. हाँ, कहाँ पे होता है आपके लैपटॉप में डाउनलोड? कहाँ पे होता है? डाउनलोड फोल्डर में. ये ऐसे सिली क्वेश्चन तो मत कीजिए. नीचे कर नीचे लास्ट में दिखाया कैन नॉट फाइंड फाइल. आपने ऐसी डायरेक्टिव बनाई थी क्या? आपने बनाई नहीं होगी, इसलिए नहीं हुआ. कोई बात नहीं, फिर से इसको सारा रन करेंगे. ओके, सो एनी मोर क्वेश्चन? सर ये वॉशरूम में ओपन हो रहा है, क्या कह रहे हैं? वॉशरूम में ओपन हो रहा है डाउनलोड होने के बाद. वो आपने डिफ़ॉल्ट आपने सेट कर रखा होगा ना. एसडीएफ के लिए आपने डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम गोस्ट व्यू कर रखा होगा, इसलिए उसमें ओपन हो रहा है. तो वैसे किसी में होना चाहिए यूजुअली? पीडीबी फाइल है, किसी में भी आप ओपन कर सकते हैं. एसडीएफ फाइल है, किसी में ओपन, एवोगैड्रो में, मेस्ट्रो में, बायवे स्टूडियो में, पाइमोल में. हाँ, वो दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. अगर आपको दूसरा प्रोटीन लेना है, दूसरा लाइगेंड लेना है, ठीक है, तो लंच के बाद मैं आपको बताऊंगा एक ट्यूटोरियल जो हमने बनाया हुआ है, उसका फॉलो करके यू कैन प्रिपेयर योर लाइगेंड्स, यू कैन प्रिपेयर योर प्रोटीन्स. और इसमें आपको मैंने बताया था कि link.pdb की जगह आप अपना लाइगेंड डाल सकते हैं ना. तो वो कैसे करेंगे? आप इस पे जाएंगे, यहाँ पे इस फोल्डर पे, इस पे जब क्लिक करेंगे तो यू कैन, बिकॉज नाउ इट इज नॉट कनेक्टेड, बट हियर ऑप्शन आता है अपलोड फाइल्स. एक ऐसे अपलोड का बटन आता है, तो वहाँ से आप फाइल जो भी आपको प्रिपेयर्ड लाइगेंड, प्रिपेयर्ड पीडीबी अपलोड करके इस फोल्डर में आ जाएगा. उसको यूज करिए, डाटा सारा डाउनलोड कर लीजिए, आपको हो गया. ठीक है, सो लंच के थ्रू कंटिन्यू करो. ठीक, पीछे से दरवाजा बंद कर दो, लंच के लिए नीचे जाओ, सारा लैपटॉप को ले जाओ. क्या सर?